Okay, continuing the banking chapter, we look at the next topic, that is commercial bank. Now the question is, what is commercial bank? We know what is bank. Bank is an institution which basically provide, which accept people deposit and lend money to the people. But when we say commercial bank, commercial basically means anything or any institution which run for the purpose of making profit. We call it commercial. Okay. So here also bank. When we say commercial bank, any institution or any bank which run for earning profit. Okay. The basic purpose behind running that bank is to make profit. Then only we can call that bank as commercial bank. Now commercial bank has a very big role to play in our economy. Okay, most of the banks which you see nowadays are commercial bank only, and because of this commercial banks, transaction of money is done on a wide scale. Economy is moving on that. A lot of lending money is done by them. They are providing a lot of credit to the people, and investment increases because of banking system. So we cannot underestimate the role of commercial bank. Now let us see what commercial bank basically do. So, commercial bank is an institution which accepts people deposit. Obviously, we know there are different forms of deposit which commercial bank accepts. Okay, and for the purpose of lending that money to the people or to the businessmen or to the society. Okay, so bank basically accept deposits, lending that money to the people or to the businesses so that they can earn profit. They can make profit out of it. Now, I already explained how they make the profit. When they accept people deposit, they give less amount of interest to them. Suppose you deposit money in the bank, they will give you only 5% interest. Now that money will be lent by the bank to somebody, and from that guy or from that business, they will take the interest. They charge the interest rather at higher rate, suppose 8%. So they are giving you 5% and they are taking interest of 8% from the business. Okay, and the difference of that is 3% is the profit of the bank. So this is how the commercial bank runs. Okay. Now commercial bank is important because when they lend money to the different units, different sectors of the economy. For the agriculture sector, they buy the government securities also. They buy the government bond also, giving money to the government for several infrastructure or mega projects. Giving money to the agriculture sector so that farmer can buy seeds or agriculture equipments. Then giving money to the businesses so that business can start, business can invest the money for the expansion of the business, or for personal purpose also. We want to buy loan, we want to buy home, so we take the loan from the banks. So these are the purpose, okay, for which the commercial banks are running. So they play a very vital or very important role for any economy. Okay? Now the next one is, what are the functions of bank? Already in the definition we discussed some of the functions of the bank, but in detail let us start with the functions. Functions can be defined or can be classified into two, that is primary function and secondary function. Secondary function in the later part we will study. Let us see the primary function or the basic functions. The primary function, the first primary function of the bank is to accept deposits. Obviously, bank are authorized to accept people deposits. Okay. We can deposit our money in the banks in different types of deposits. Now, accepted deposits can be of different types. That is saving, which is the most common. Saving deposit means बैंक में आपके जो अकाउंट्स है, ओके, आप जब बैंक में अकाउंट खुलाते हो, सेविंग अकाउंट खुलाते हो, उसमें आप जब चाहो at any point of time you can deposit any amount of money and you can withdraw any amount of money from the bank, but you have to keep some minimum deposit. Okay, there are some restrictions on the withdrawal. That it's not you can withdraw any amount of money at any point of time, but there are some restrictions. That means you have to keep some minimum deposits, and in a day you have to make certain transactions only. So there are certain limitations. Most of the people have a saving account. On saving account, the rate of interest is received by the depositor, but the rate of interest is comparatively low. Okay, comparatively low. The next one is current account. Current account basically it is held by a current deposit is basically held by a businessman who used to make lot of transaction in a day. Lots of payment, lot of deposits come in the bank. So these people, businessmen generally have current account in which there is no limit. How many transactions you want to make in a day, it's up to you, okay. But for providing that service, the bank sometimes charge interest or charge money from you. Forget the interest on that. Bank is not going to give you any interest on current account. In fact, in some cases, bank charges money from you, okay, or from the businessman.
नेक्स्ट वन इज रिकरिंग। रिकरिंग अकाउंट बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनको फ्यूचर में कोई बड़ा खर्चा करना है या बड़ी अमाउंट लमसम में इकट्ठी करनी है, तो वो हर महीने का या हर वीक का या हर फोर्टनाइट का कुछ कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते आते हैं, फिक्स्ड अमाउंट। ओके, से फॉर एग्जांपल हर महीने 3,000 रुपए बैंक में जमा हो रहे हैं, तो ये बेसिकली रिकरिंग में क्या होता है, आपके सेविंग अकाउंट में से 3,000 रुपए कट के रिकरिंग में जमा होते जाएंगे, और ये 1 साल 2 साल या 4-5 साल जितना भी आप कराना चाहते हो करा सकते हो। After the completion of that period, okay, you will get the amount in the lump sum plus the rate of interest. Generally, the rate of interest on recurring is higher than saving. सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट रिकरिंग में आपको मिलता है, लेकिन रिकरिंग अकाउंट में ऐसा है कि अगर आप बीच में पे करना भूल गए या नहीं पे कर पाए, तो यू मे हैव टू पे सम पेनल्टी और द इंटरेस्ट में बी रिड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट। नाम से क्लियर है, फिक्स्ड या टर्म डिपॉजिट यानी ये एक पर्टिकुलर टर्म के लिए होता है, मींस यू डिपॉजिट अ लंप सम अमाउंट इन द बैंक, बहुत सारा इकट्ठा एक अमाउंट आप बैंक में जमा कर दो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, से फॉर एग्जांपल 3 इयर्स, और 3 इयर्स के बाद में आपको पूरा अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट आपको बैंक वापस दे देगा। जनरली ऑन द फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द हाईएस्ट। ओके, तो सबसे करंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, सेविंग में कम होता है, रिकरिंग में सेविंग से ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट्स में होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के डिपॉजिट से तो बैंक जनरली एक्सेप्ट करता है। तो सेकंड प्राइमरी फंक्शन है बैंक का, वो है प्रोवाइडिंग क्रेडिट। प्रोवाइडिंग क्रेडिट यानी बैंक आपको अलग अलग टाइप्स के लोन देता है, पर्सनल पर्पस के लिए भी लोन देता है, एग्रीकल्चर के लिए भी देता है, बिजनेसेस के लिए भी देता है। ओके, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। लोन में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, ओके, जो बिजनेसेस को चाहिए अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। मीडियम टर्म्स लोन होते हैं जो 1 से 5 साल के बीच में होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं बेसिकली जो 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के अलग अलग ड्यूरेशन के लिए बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली जो लोन बैंक आपको देता है उसको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लेता है। ओके, तो बैंक हाउसिंग लोन है, कार लोन है, बिजनेसेस के लिए लोन है, ट्रांजेक्शन्स के लिए लोन है, ये आपको अलग अलग पर्पस के लिए लोन आपको बैंक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज पेमेंट एंड विड्रॉल। ओके, यू कैन मेक सो मेनी पेमेंट्स थ्रू बैंक। आपको कोई मनी ट्रांसफर करना है, किसी इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करना है थ्रू चेक और थ्रू क्रेडिट कार्ड्स या कोई और मीडियम से आप थ्रू बैंक कर सकते हो। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन विड्रॉ द मनी आल्सो। वी हैव द एटीएम सर्विस अवेलेबल। ओके, तो आपको जब भी चाहिए आप पैसा वहां से विड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो वहां पे पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो पेमेंट और विड्रॉल की फैसिलिटी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट क्रिएशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है। क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली ये बैंक की एबिलिटी होती है। इट इज द एबिलिटी ऑफ बैंक, ओके, टू क्रिएट क्रेडिट मच मोर देन या मेनी टाइम्स देन द प्राइमरी डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है, बैंक में जितना पैसा जमा होता है, प्राइमरी डिपॉजिट यानी सपोज मेरे पास 1 लाख रुपया कैश है, मैं बैंक में गया और 1 लाख रुपया मैंने कैश बैंक में जमा किया, तो जो कैश मैंने 1 लाख बैंक में जमा किया दैट्स कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। ओके, नाउ बैंक काम कैसे करता है इसको समझने के लिए आपको प्राइमरी डिपॉजिट सीआरआर को समझना पड़ेगा। प्राइमरी डिपॉजिट मींस जो इनिशियल स्टेज में सबसे पहले कैश में जो पैसा बैंक में जमा होता है दैट्स कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट का वो भाग जो एक कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। पार्ट ऑफ डिपॉजिट विच ए कमर्शियल बैंक हैज टू डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, सॉरी रिजर्व बैंक। ओके, ये 5% 10% कुछ भी हो सकता है। सपोज 1 लाख रुपया बैंक में जमा होता है तो बैंक क्या करता है, बैंक को उसका 10%, सपोज सीआरआर 10% है तो 1 लाख का 10% है 10,000 रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ेगा। तो बैंक के पास कितना पैसा बचा, 90,000 रुपीज बचा। अब बैंक अगर किसी आदमी कोई बैंक से लोन लेने आता है तो बैंक उसको लोन देता है 90,000 का, लेकिन 90,000 कैश में देता है, बैंक उसको चेक से देता है या फिर उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। ओके, तो पैसा कहीं नहीं गया, पैसा तो बैंक में पड़ा है, बस बैंक ने उसको चेक किया या फिर उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब अगर बैंक उसको चेक देता तो चेक घूम के वापस बैंक में डिपॉजिट होगा, यानी पैसा बैंक के अंदर ही। जैसे वो बैंक में 90,000 का चेक डिपॉजिट करेगा तो बैंक में डिमांड डिपॉजिट 90,000 का आ गया। ओके ना, 90,000 डिमांड डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट के ऊपर अगेन 10% सीआरआर है तो 10% यानी 9,000 उसमें से कट कर दो 10%, और बाकी का 81,000 बैंक किसी और को एज ए लोन दे सकता है। ओके, फिर वो 81,000 अगेन किसी को चेक देगा, वो चेक वापस बैंक में जमा होगा और बैंक के पास अगेन डिमांड डिपॉजिट 81,000 का आ जाएगा। अब 81,000 का 10% यानी 8100 वो निकाल लेगा और बाकी का 73 या 72,000 जो भी अमाउंट है वो किसी को लोन के रूप में दे देगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बैंक में डिपॉजिट हुआ था 1 लाख रुपीज और बैंक ने लोन कितना दिया, एक को दिया 90,000, दूसरे को दिया 81,000, देन 73,000, देन 64,000, लाइकवाइज अमाउंट। उन सारे अमाउंट को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा बैंक में 1 लाख रुपीज है लेकिन बैंक ने लोन
शायद 5 लाख या 6 लाख या 10 लाख रुपीज का लोन दे दिया है, ओके, तो ये बैंक की एबिलिटी होती है जिससे कि बैंक क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, यानी जितना पैसा उससे कई गुना ज्यादा बैंक क्रेडिट दे पाता है, उस बैंक की एबिलिटी को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। याद रखो, क्रेडिट क्रिएशन तभी वर्क करता है अगर लोग मनी जो है वो कैश में विड्रॉ ना करें। जैसे बैंक ने किसी को लोन दिया, ओके, बैंक जब आपको लोन देता है थ्रू चेक या आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है, देन इट्स फाइन, क्रेडिट क्रिएशन विल बी डन। अगर कैश में अगर आप विड्रॉ करते हो बैंक से, लोन जो आपको दिया कैश में अगर आपने लिया, देन क्रेडिट क्रिएशन विल नॉट वर्क, ओके। सो ये इस तरीके से काम करता है। तो क्रेडिट क्रिएशन बैंक की एबिलिटी जिससे बैंक प्राइमरी डिपॉजिट से कई गुना ज्यादा बैंक पब्लिक को लोन दे पाता है, दैट्स कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला है क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन सीआरआर। सीआरआर मींस 10%, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो 10, 20 कुछ भी हो सकता है, ओके, वो सब कैलकुलेट कर सकते हो सीआरआर कितना है ना। ये हेल्प करता है इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्रिएशन करने में, क्योंकि जितना ज्यादा मनी इकोनॉमी में होगा लोग उतने ज्यादा खर्च करेंगे, लोगों के पास जितना पैसा इन द सेंस भले कैश में ना हो, चेक के फॉर्म में भी हो, लेकिन उस चेक से आप दूसरी चीजें खरीद सकते हो। दैट मींस द मोर क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी मींस मोर मनी विद द पीपल और मोर थिंग्स दे कैन बाय, ओके, दे कैन स्पेंड। और अगर ये होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमी ग्रो करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस। कई बार बैंक में ऐसा होता है कि बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है, बैंक को पैसे की शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे की जरूरत पड़ी है, तो एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा ले सकता है, उसको बोलते हैं कॉल मनी। ये थ्रू रिजर्व बैंक होता है, ओके, रिजर्व बैंक बीच में मिडिल बैंक की तरह होता है, ओके, इसके द्वारा या उसको बीच में रख के आप ये ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बेसिकली थोड़ा ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं कॉल इंटरेस्ट रेट, ओके। तो इसको हम कॉल मनी बोलते हैं, जो एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट पीरियड के लिए मनी बोरो करता है। तो ये फैसिलिटी भी ये फंक्शन भी कॉमर्शियल बैंक करता है, दैट इज इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस। देन कम्स द सेकेंडरी फंक्शंस। Okay, let us see. We have completed the primary function. Now we will go or move towards the secondary functions. Now secondary functions में आपके बुक में 2 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। एजेंसी मींस मिडिल मैन की तरह काम करता है, मींस आपके बिहाफ पे आपका काम बैंक करके देता है और बदले में आपसे कुछ कमीशन या कुछ चार्जेस लेता है, ओके। तो एजेंसी और यूटिलिटी सर्विसेज बैंक आपको प्रोवाइड करता है। बहुत सारे एजेंसी सर्विस देता है। से फॉर एग्जाम्पल लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेप्ट करता है ना। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जब आप फॉरेन से कोई गुड्स खरीदते हैं, आप जब फॉरेन से कोई गुड्स खरीदते हो तो डेफिनेटली आपको उसको पेमेंट करना है, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज आप पेमेंट पहले तो कर लेते हो, क्योंकि अगर आपने पेमेंट पहले कर दिया और उसने अगर गुड्स नहीं दिया या फिर गुड्स एज पर द स्टैंडर्ड नहीं दिया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक दैट मनी बैक। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, यानी हम अपने बैंक को बोलते हैं कि बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो। सामने वाली पार्टी को हम पे भले भरोसा नहीं है, लेकिन बैंक पे तो होता ही है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक उसको देता है। जब आपको गुड्स मिल जाता है और गुड्स आपने कर दिया कि भाई एज पर द नॉर्म्स गुड्स है, वी आर एक्सेप्टेड, वी आर ओके विद द गुड्स, देन ऑन द लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक मेक द पेमेंट टू द पार्टी जिससे आपने गुड्स खरीदा वो करता है। तो ये जो फॉरेन ट्रेड में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के अंदर जो बिल ऑफ सॉरी क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट है, सॉरी, लेटर ऑफ क्रेडिट की जो फैसिलिटीज है ये बैंक आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज बैंक आपको टैक्स चालान पे करने में हेल्प करता है, मींस आपको जो टैक्स आपको पे करना थ्रू बैंक यू कैन पे टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज बैंक ऑल्सो प्रोवाइड यू द लोकल फैसिलिटी, जिसमें आप अपना ज्वेलरी, अपनी कोई भी कीमती चीजें उसमें स्टोर करके रख सकते हो। बैंक आपसे हर साल या कुछ मंथ्स में कुछ चार्जेस आपसे उसका लेता है, ओके। नेक्स्ट वन इज माइक्रो फाइनेंसिंग। बैंक आपको माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो मींस स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। से फॉर एग्जांपल एक फार्मर उसे सीड्स के लिए पैसे चाहिए तो 10,000 20,000 स्मॉल अमाउंट जो अगर आपको फाइनेंस के लिए चाहिए तो वो भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बैंक आपको ड्राफ्ट या पे ऑर्डर इशू करता है। कई बार हम कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको पहले ड्राफ्ट जमा करना पड़ता है, फिर आपका जब एडमिशन सब कंफर्म हो जाता है और एडमिशन ले रहे तो देन ड्राफ्ट के ऊपर बैंक में से आपके अकाउंट में से पैसे चले जाते हैं। सो आपको ड्राफ्ट इशू करना है, पे ऑर्डर इशू करना है, ये भी बैंक आपके बिहाफ पे इशू करते हैं। ऑब्वियसली बैंक चार्जेस सम अमाउंट ऑन दैट। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज विद चेंजिंग टाइम। नाउ अभी क्या हो गया, पहले तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं बेसिकली कैश में होते थे या चेक से होते थे, ओके, जिसमें काफी टाइम भी लगता था। जैसे आपने चेक अभी दिया था वो 2 या 3 दिन के बाद में आपके अकाउंट में से क्रेडिट सॉरी डेबिट होगा
या फिर आपको चेक मिला तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। लेकिन और या फिर आपको कैश में पैसा करना तो यू हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ कैश। लेकिन अभी क्या हो गया, बिकॉज ऑफ अभी कैश इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया, मीन्स बिकॉज ऑफ द इंटरनेट या चेंजिंग सिनेरियो के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी का हो गया थ्रू आरटीजीएस या एनईएफटी के द्वारा आप रियल टाइम में अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हो तो somebody sitting in Bombay, okay, you can transfer that money through NEFT at real time, मीन्स अभी अपने अकाउंट में डाला, क्रेडिट किया और सामने वाले पार्टी को तुरंत वो पैसे मिल जाते हैं। तो बिग अमाउंट या लम सम में जो अमाउंट है वो NEFT आरटीजीएस के द्वारा सेंड कर सकते हो। ये पॉसिबल इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग मीन्स सेंट्रलाइज हो गया। सेंट्रलाइज सारे बैंक्स एक दूसरे से थ्रू इंटरनेट कनेक्टेड हैं, ओके, कंप्यूटर के द्वारा और इंटरनेट फैसिलिटीज के द्वारा एक दूसरे कनेक्टेड, इसलिए रियल टाइम में पेमेंट्स होता है। और भी बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स आपको गुड्स खरीदना है, कोई सामान खरीदना है, मूवी टिकट्स खरीदनी है या तो किसी को पेमेंट करना है थ्रू मोबाइल ऐप, वो भी आप कर सकते हो थ्रू बैंक्स। वन मोर फैसिलिटी इज दैट अबाउट डीमार्ट अकाउंट ना। डीमार्ट अकाउंट एक्चुअली होता क्या है, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट इसको बोलते हैं ना। डीमार्ट अकाउंट में होता ये है कि जो लोग शेयर्स एंड डिबेंचर्स का ट्रेडिंग करते हैं, मीन्स दे बाय द शेयर्स एंड सेल द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, उन लोगों को पहले क्या करना पड़ता था, शेयर्स को फिजिकल रूप में लेना पड़ता है। शेयर एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में आता है, तो जब हम शेयर किसी को बेचते हैं या खरीदते हैं तो आप उसको पेमेंट करते हो, बदले में आपको सर्टिफिकेट देता है। वो सर्टिफिकेट मिलने में आपको बहुत टाइम लगता है, ओके, और आपको उसको संभाल के रखना भी पड़ता है। अभी क्या डीमार्ट अकाउंट से ये सब मगजमारी चली गई है। सारे के सारे जो शेयर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में आ गए। उससे होता क्या है, जब आप शेयर खरीदते हो बेचते हो, आपके अकाउंट में से अगर आपने खरीदा है तो पैसा सामने वाली पार्टी को चला जाएगा, तुरंत आपके अकाउंट में उतनी अमाउंट के शेयर्स आ जाएंगे, ओके। फिर आप किसी और को बेचोगे तो वो डिजिटल फॉर्म में वो सामने वाली पार्टी पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी आपको शेयर से डिबेंचर को फिजिकल फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है, वो डिजिटल फॉर्म में आपके अकाउंट में होंगे और जब भी आप खरीदे या बेचोगे तो वो चले जाएंगे या फिर वापस आ जाएंगे। तो उससे ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया और ट्रेडिंग काफ़ी आसान भी हो गया। तो ये कुछ फैसिलिटीज है, सेकेंडरी फैसिलिटीज जो बैंक्स आपको प्रोवाइड करता है या कॉमर्शियल बैंक्स आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।